Hello everyone, welcome back to our series Motion Class 9 Physics. So this is lecture number 4 and we are going to cover what is acceleration, its type and questions. Now before starting this lecture, I would like to recap the lecture number 3. So there were basically 5 formulae we learned in previous lecture. What were they? What is the formula of speed? Speed is nothing but distance upon time. Now what was velocity? Velocity is nothing but speed with direction. So instead of distance, what we will write? Displacement, as displacement is also a vector quantity. So this will provide actually the direction to velocity. So velocity is nothing but speed with direction. इसलिए speed में distance वाला term आया और velocity में displacement वाला term आया. There was one conversion which we learned. So 1 kilometer per hour was how much meter per second? So it was basically 5 by 18. So this formula is really important to simplify your calculation. Now two more formulae which were super easy. What do we mean by average speed and average velocity? So whenever you get this word average, just write total in numerator and denominator side. So total here and total here. So what is average speed? Total distance upon total time. अब इसका लॉजिक भी मैंने बताया था. इन एवरेज वी टॉक अबाउट कंप्लीट मोशन. ओके, सो इसलिए हम टोटल वर्ड यूज करते हैं. इन एवरेज वेलोसिटी just add these word total before numerator and denominator. So average velocity is equals to total displacement upon total time. So these were the 5 formulae which we learned in the lecture number 3. Now let's start with acceleration. Now remember we learned about a uniform motion and a non-uniform motion. So in uniform motion, what we had, equal distance in equal interval of time, and we used to have a constant speed. Okay, so basically वहाँ पे जो स्पीड में चेंज होता था वो जीरो होता था. क्यों? क्योंकि एक सेकंड में भी वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सेकंड में भी, थर्ड सेकंड में भी उसकी स्पीड बदल ही नहीं रही. तो जब वो बदल ही नहीं रही तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बट ऐसा नॉन यूनिफॉर्म केस में नहीं होता. इन नॉन यूनिफॉर्म केस जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. सो द चेंज इन वेलोसिटी इज देयर. So there will be an acceleration. Acceleration is nothing but the rate of change of velocity with respect to time. So basically इसको learn करने का क्या तरीका है? Now we learned that what is speed or what is velocity, for example. So velocity was nothing but displacement upon time. तो यहाँ पे हम change की बात नहीं करते थे. But in acceleration, it is not simply velocity upon time. आप आगे जाके देखोगे काफी बच्चे इसे सिर्फ ऐसे याद रखते हैं, velocity upon time. No, acceleration is change in velocity upon time. So this change word is really important in acceleration. So इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी में कोई चेंज आता ही नहीं है. So acceleration is only possible in a non-uniform motion. So let's read this paragraph once again. So during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. So yeah, that's important and simply easy. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instant and at different point of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero and is expressed by a physical quantity known as the acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to the time, and this is the formula. Just learn the formula, बाकी सब तो basic है. It's more of an understanding. Now, change in velocity का मतलब क्या होता है? Final velocity माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ऐसे ही चेंज निकालते हैं, ठीक है. सो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पे ये लिखा है कि फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है.
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी. सो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखो या ये वाला फॉर्मूला याद रखो, एक ही बात है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, and not only change in velocity but change in anything is written as final minus initial. ओके, तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दिस एक्सेलरेटेड मोशन इज पॉसिबल ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका लॉजिक भी देख लेते हैं. अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट होगी. वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, ये हम लर्न करके आए हैं. और टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकेंड. तो इसकी टोटल यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. स्पीड या वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. Now, it is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because velocity is a vector quantity. So acceleration has to be a vector quantity. So acceleration can be negative, positive, zero because it is a vector quantity. अब एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक बॉडी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो इंसान की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो रही है. बट अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है. ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस एंड नेगेटिव साइन. रिमेंबर फिजिक्स में प्लस एंड नेगेटिव इज ओनली फॉर डायरेक्शन. ठीक है. So this is all in this paragraph. Now there are some notes related to lecture number 3. So if a body is moving in a straight line, the magnitude of its speed and velocity will be equal. Reason, क्योंकि अगर straight line में move कर रहे हैं तो direction तो बदल ही नहीं रही, और अगर speed बराबर है, अगर speed change नहीं हो रही है तो velocity भी change नहीं हो रही है. So speed and velocity का magnitude बराबर होगा क्योंकि direction change हो ही नहीं रही है. Now, average speed of an object can never be zero, but the average velocity of a moving object can be zero. तो एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हो सकती है. और कब हो सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तब एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है. इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम देन इट इज सेड टू बी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन. अभी थर्ड पॉइंट कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि उसकी अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब कि उसे वो कम कर रहा है, मतलब कि वो वेलोसिटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसे कम करने का इम्पैक्ट डाल रहा है. सो दैट इज नोन एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. सो व्हेन अ एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग द वेलोसिटी then it is known as the deceleration or retardation. Now let's see through example. So ये एक इंसान है जिसकी स्पीड बढ़ रही है, तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन में है. फॉर एग्जांपल इस इंसान की स्पीड कम हो रही है तो भी वो एक्सेलरेशन में है. एक्सेलरेशन में क्यों है, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल ये हनी बी है जिसकी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो भाई एक्सेलरेशन तो है. So it is accelerating because it is changing the direction, it is changing the velocity. Now, अब अपन ने क्या सीखा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगी, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो जो स्पीड है वो तेज होगी. एक्चुअली एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी में चेंज लाना. तो अगर वो उसी के डायरेक्शन में है तो सामने ही चेंज ला रही होगी, है ना, इंक्रीज कर रही होगी, तो कार स्पीड अप होगी. इसे लॉजिकली समझो. ओके, एंड ऐसे लर्न कर लेना, अगर इक्वल साइन है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर ऑपोजिट साइन है तो डिक्रीज हो रहा है.
Now let's understand the type of acceleration. So we have two type of acceleration, uniform and non-uniform. अब uniform acceleration के पहले uniform speed की बात कर लेते हैं. So what was uniform speed? Uniform speed was nothing but equal distance in equal interval of time, right? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये देख लेना. अब और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था ये भी याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम यूज्ड टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड. सिमिलरली एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, अब ये भी जल्दी से बता दो. एक्सेलरेशन का भी अभी अपन ने फॉर्मूला लर्न किया है, क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? Equal change in velocity in equal interval of time is known as the uniform acceleration, and unequal change in velocity in equal interval of time will be known as the non-uniform acceleration. So this is exactly same like uniform speed and non-uniform speed. बस क्योंकि formula अलग है तो terms change हो गए. That's all. Now let's do an easy question. तो बस इस वाले लेक्चर में तो अपन ने एक ही चीज याद की है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन एनीथिंग इज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब कि 0 पे था. अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. तो 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो गई. Then the driver of the car applies a brake. ब्रेक अप्लाई करना मतलब कि एक्सेलरेशन देना. और ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो मतलब कि वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो बेसिकली रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ कार कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो 60 मीटर पर सेकेंड से ही अब डायरेक्टली आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड में. कितनी देर में? 5 सेकेंड में. क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाए. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इन बोथ द केसेस. दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2. तो इन केस नंबर 1 just write the change in velocity. So change in velocity is final minus initial. What is final? 60. What is initial? 0. And time क्या दिया है? 30. So this will be for case number 1. And now for case number 2, what is final? 4. What is initial? 60. This is velocity. And what is the total time required in this case number 2 was 5 seconds. Now do observe कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ रही है, राइट? वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही. सो ये भी पॉजिटिव, स्पीड बढ़नी चाहिए थी. हाँ, बढ़ रही है बिल्कुल. तो आंसर सही है अपना. केस नंबर 2 में वेलोसिटी तो अब भी पॉजिटिव में है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ से नेगेटिव आएगा, है ना? ये हो जाएगा माइनस का 56/5, तो नेगेटिव आएगा. बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि स्पीड कम होनी चाहिए. हाँ, बिल्कुल स्पीड कम हो रही है, तो अपना आंसर सही है. सो दिस इज थिंग इन विच वी कैन चेक व्हाइल सॉल्विंग आवर पेपर्स. So that's all for this lecture. The only thing which we learned in this lecture is that acceleration is nothing but change in velocity upon time. ओके, नाउ आपके लिए बहुत एक इजी सा क्वेश्चन है आज के लिए. डू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. और आपके पास कोई भी सजेशन, बिजनेस क्वेरी और प्रॉब्लम हो, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो थ्रू आवर ईमेल, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखो. वी विल श्योरली रिप्लाई यू. सो दिस इज द आंसर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू फॉर टुडे. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अपन ने डिस्कस किया. द ओनली थिंग इज कि जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्चुअली किलोमीटर इंटू आर स्क्वायर में आएगा, और उससे आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. अब इसको आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में करते हो. आपको एग्जैक्टली वैसे करना है. या फिर एक और अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्टली पहले वेलोसिटी को चेंज कर लो, जो फॉर्मूला हमें आता है उससे, एंड देन आगे आप सॉल्व करो, क्योंकि टाइम तो अपन को सेकेंड में ही दिया हुआ है. So that's a little hint for it. So thank you so much for watching, and do subscribe to our channel.